Hello students, in chapter 7, let's not forget the martyrs. Vandana Sehgal has very eloquently compiled the heroic saga of 5 great warriors of our country who laid down their lives for the honor, dignity and protection of their motherland. Today students, we will study about the first recipient of the Paramveer Chakra, Major Somnath Sharma. Major Somnath Sharma, 1923 to 1947, was the first recipient of the Paramveer Chakra, the highest Indian gallantry award. He was awarded the medal posthumously for his bravery in the Kashmir operations in November 1947. So beta, Major Somnath Sharma 24 इयर्स की छोटी सी एज में मार्टिरडम उन्होंने प्राप्त किया, शहीद हो गए और वो पहले रेसिपिएंट थे, पहले परमवीर चक्र पाने वाले हमारे फौजी थे. परमवीर चक्र जो कि आप जानते ही हैं हाईएस्ट इंडियन गैलेंटरी अवार्ड है. He died while evicting Pakistani infiltrators and raiders from Srinagar airport during the Indo-Pak War of 1947-48 in Kashmir. He belonged to the 4th Kumayu Regiment. 1947-48 के इंडो-पाक वॉर में, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है, उसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों को श्रीनगर के एयरपोर्ट से खदेड़ते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए. ही बिलोंग टू द 4th कुमायूं रेजिमेंट. मेजर सोमनाथ शर्मा was born on 31st January 1923 at Dad, Kangra, Himachal Pradesh, India. He came from a very well-known military family. His father, Major General Amarnath Sharma, was also a military officer. मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में हुआ और वो एक बहुत वेल नोन मशहूर मिलिट्री फैमिली को बिलोंग करते थे. उनके पिताजी भी मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक मिलिट्री ऑफिसर थे. His company was airlifted to Srinagar on 31st October 1947. His right hand was in plaster cast as a result of injuries sustained in the hockey field previously, but he insisted on being with his company in combat and was given permission to go. 31 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को बाय एयर पहुंचाया गया. उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा के राइट हैंड में फ्रैक्चर था, जिस वजह से उनकी बांह पे प्लास्टर था. ये चोट उन्हें हॉकी के फील्ड में खेलने के टाइम लगी थी. इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये जिद करी कि वो अपनी कंपनी के साथ लड़ाई में जाएंगे और उन्हें इस बात की परमिशन भी मिल गई. On November 3rd, 1947, Major Somnath Sharma's company was ordered on a fighting patrol to Budgam village in Kashmir Valley. A tribal lashkar of 700 raiders approached Budgam from the direction of Gulmarg. The company was soon surrounded by the enemy from 3 sides and sustained heavy casualties from the ensuing mortar bombardment. Under heavy fire and outnumbered 7-1, Somnath urged his company to fight bravely, often exposing himself to danger as he ran from post to post. 3 नवंबर 1947 को
मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को बड़गांव विलेज कश्मीर वैली में भेजा गया। वहां 700 घुसपैठियों के एक लश्कर ने बड़गांव पर गुलमर्ग की तरफ से आकर अटैक किया। द कंपनी वॉज सून सराउंडेड बाय द एनिमी और तीन तरफ से मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को इन घुसपैठियों ने घेर लिया और फिर खूब भारी बमबारी उनके ऊपर की, जिससे हमारी फौज का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, काफ़ी फौजी जो हैं घायल हुए, मारे गए। अंडर हैवी फायर एंड आउटनंबर 7 to 1, सोमनाथ urged his company to fight bravely. 700 घुसपैठिए थे और हमारी फौज में उस टाइम करीब 100 फौजी थे और इस तरह से आउटनंबर हो गए वो 7 to 1। सोमनाथ urged his company to fight bravely। सोमनाथ ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया, खूब जम के लड़ाई करने को उनका उत्साह बढ़ाया और इस दौरान एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू डेंजर एज ही रैन फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट, और वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे भाग भाग कर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते रहे। When heavy casualties adversely affected the firing power of his company, Major Sharma, with his right hand in plaster, took upon himself the task of filling the magazines and issuing them to men operating light machine guns। हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने जब देखा कि इतनी ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे फौजी घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद अपने आप एक हाथ से अपने साथियों की बंदूकों में मशीन गन में मैगजीन भरने का काम लिया और साथों साथ उनका उत्साह भी बढ़ाते रहे। While he was busy fighting the enemy, a mortar shell exploded on the ammunition near him. His last message to brigade headquarters before he was killed was, "The enemy are only 50 yards away from us. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to our last man and our last round." जब बहुत ज़्यादा गोलाबारी दुश्मन करने लगे, तब एक मोटार शेल बॉम्ब आके वहाँ फटा जहाँ पर हमारे फौजियों के एम्यूनेशन गोले बारूद पड़े थे। इसके एक्सप्लोड होने से मेजर शर्मा घायल हो गए और उनका लास्ट मैसेज जो कि उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को था, वो था कि एनिमीज आर ओनली 500 यार्ड्स फ्रॉम अस। जो दुश्मन है हमसे सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है, एंड वी आर अंडर डेविस्टेटिंग फायर, और हम पे बहुत ज़्यादा गोला बारूद से अटैक कर रहा है। आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आर लास्ट मैन एंड आर लास्ट राउंड। मैं अपनी पोस्ट से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक हमारा एक भी साथी, एक भी फौजी जिंदा है और हमारे पास एक लास्ट गोली तक बची होगी। By the time the relief company of 1st Battalion Kamau Regiment reached Badgaon, the position had been overrun. However, the 200 casualties suffered by the enemy made them lose their impetus to advance. The Indian troops in the meantime flew into Srinagar airfield and blocked all routes to Srinagar. In this manner, Somnath Sharma prevented the fall of Srinagar. जब तक 1st बटालियन कमाऊ रेजिमेंट की रिलीफ कंपनी उन तक पहुंची, उस पोस्ट को दुश्मनों ने पूरी तरह घेर लिया था। दुश्मनों का भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 200 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वो घायल हुए और इससे उनका उत्साह भी टूट गया और उन्होंने आगे अटैक करने का विचार छोड़ दिया। इतने में इंडियन एयरफोर्स का
हवाई दस्ता श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंच गया और उन्होंने श्रीनगर की तरफ आने वाले सब रूट्स को ब्लॉक कर दिया। इस तरह से मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर को दुश्मनों के हाथों जाने से बचा लिया।